ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਚਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 75th ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ 193 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਵੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਜੋਨਸ ਸੌਲਕ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋਨਸ ਸੌਲਕ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਬਰਟ ਸੂਤੀਨ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਲਬਰਟ ਸੁਬੀਨ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਥੀਮ। ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅ ਵਿਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਲੀਓ is a win for global health. A win against polio is a win for global health. Next ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 14 ਮੈਂਬਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 14 ਮੈਂਬਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NTPC ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਸਟ ਐਮਪਲੋਇਰ 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਬੈਸਟ ਐਮਪਲੋਇਰ 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਬਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NTPC ਦੁਆਰਾ। NTPC 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ NTPC ਦੇ ਹੈੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NK ਸਾਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਲੋਨਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਆਫ ਆਰਮੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਪਸ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਲੋਨਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਆਫ ਆਰਮੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਪਸ ਦੇ NK ਸਾਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ UK ਬੇਸਡ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਜੀਨੀ ਵਾਰਗੀਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ 2020। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 2021 ਫੈਬਰਰੀ 2021 ਤੱਕ। 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ FATF ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ 39 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। FATF ਦੀਆਂ 39 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਸਿਸਟਿਡ 720 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗਦੇਚੂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਮੰਗਦੇਚੂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੂਨਲ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਰੂਨਲ ਮੈਡਲ ਫॉर ਐਕਸਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
किन्ना द्वारा यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा। इसनूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया गया सी 17 अगस्त 2019 मांगदेचू हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नैक्सट है प्रहलाद सिंह पटेल, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने प्रहलाद सिंह पटेल इन्हां द्वारा लाइफ इन मिनीएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। लाइफ इन मिनीएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद नैशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। नैशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली की हैल्प के नाल और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की हैल्प के नाल। मंडी, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप पोजीशन हासिल की है अमंग 30 डिस्ट्रिक्ट। 30 डिस्ट्रिक्ट के विचों टॉप किया मंडी डिस्ट्रिक्ट ने हिमाचल प्रदेश के किस दे विच इन सक्सैसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सक्सैसफुल इंप्लीमेंटेशन दे विच। नेक्स्ट है ग्रीस, ग्रीस प्लान्स टू बिल्ड वॉल ऑन बॉर्डर विद टर्की। ग्रीस ने प्लान किया है कि वह टर्की के नाल एक बॉर्डर वॉल बनाएगा, टर्की के नाल एक बॉर्डर वॉल बनाएगा ताकि की किया जा सके माइग्रेंट्स नूं स्टॉप किया जा सके, उन्होंने कंट्री दे विच माइग्रेंट्स नूं स्टॉप किया जा सके। नैक्सट है इंडिया चेयरमैन अपॉइंट किया गया गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आफ्टर 35 साल। 35 सालों तो बाद गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को। इंडिया के लेबर एंड इंपलॉयमेंट सैकटरी ने जोड़े अपूर्व चंद्रा नाम इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखना है। इन्होंने चेयरमैन अपॉइंट किया गया अक्टूबर 2020 तो जून 2021 तक के लिए। 1990 दे विच बनाया गया सी ILO जनेवा दे विच हैडकुआटर है। 187 मैंबर कंट्रीज़ ने और इसके डायरैक्टर जनरल ने गाई राइड। नैक्सट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स सैटअप किए जाएंगे। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स सैटअप किए जाएंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा सारे मैडिकल कॉलेजिस और 17 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स दे विच। नैक्सट है उड़ीसा, उड़ीसा द्वारा सुनंदा सम्मान शुरू किया गया सी। सुनंदा सम्मान, इन्हों द्वारा सुनंदा सम्मान बेसिकली इत्थे एक सिंगर सीगे सुनंदा पटनायक, रिसेंटली इन्हों की डेथ हुई सी। सुनंदा पटनायक क्लासिकल म्यूजिक सिंगर ने इन्हों के नाम के उत्ते सुनंदा सम्मान शुरू किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा विद कैश अवार्ड ऑफ 2.5 लाख रुपए की कैश अवार्ड देना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा तरंग सुपोषित महाराष्ट्र तरंग सुपोषित महाराष्ट्र शुरू किया गया पोर्टल किस दे लई टू फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली कुपोषिता नूं खत्म करने के लिए या सुपोषिता लियाउण दे लई तरंग सुपोषित महाराष्ट्र पोर्टल लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा भाग्य लक्ष्मी स्कीम शुरू की गई है। बेसिकली जी सुकन्या समृद्धि योजना है उसके अंडर ही भाग्य लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंडर BPL फैमिलीज़ दी गर्ल्स नूं 1 लाख रुपया दिता जाएगा 18 साल की एज तो बाद। 1 लाख रुपया दिता जाएगा 18 साल की एज तो बाद। नैक्सट है N नरसिम्हा रेड्डी तेलंगाना के पहले होम मिनिस्टर से, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। तेलंगाना के पहले होम मिनिस्टर N नरसिम्हा रेड्डी से, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दे विच सूबेदार जोगिंदर सिंह मैमोरीयल वॉर मैमोरीयल बनाया गया जो कि 1962 की इंडिया चाइना वॉर के काफ़ी ज़्यादा इन्हों का रोल रहा सी। कित्थे बनाया गया? बुमला अरुणाचल प्रदेश। प्लेस याद रखनी है, इंपोर्टेंट बनेगी। नैक्सट है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1500 बैड ब्लॉक का। 1500 बैड ब्लॉक का फाउंडेशन स्टोन दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा लोक नायक हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के विच रखा गया। यूपी द्वारा महादेवी वर्मा योजना लॉन्च की गई। महादेवी वर्मा योजना जिसके अंडर बुक्स प्रोवाइड की जाएगी पुअर चिल्ड्रनस नूं बेसिकली जोड़े लेबरर्स ने उन्होंने चिल्ड्रनस नूं महादेवी वर्मा योजना के अंडर बुक्स के लिए एक स्पैसीफिक अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने इन्हों द्वारा 1 लाख रुपए अनाउंस किए गए हैं कि 1 लाख रुपए दिते जाएंगे 136 रिटर्नी मिलीटेंट्स नूं। जिहड़े मिलीटेंट्स वापस आए ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ रुपए ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੀਕਾ ਬੱਤਰਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਐਮ ਥੰਗਾਵਾਲੂ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਈ ਜੰਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 7.5 ਲੱਖ रुपए ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 25 ਲੱਖ रुपया ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ऑब्जर्व कर रहा है हर साल। कदों तो लैके कदों तक? इंडिया विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व करता है 27 अक्तूबर तो 2 नवंबर तक, यानी कि अज तो शुरू होएगा विजिलेंस अवेयरनेस वीक। 27 अक्तूबर तो 2 नवंबर तक इस वीक नू ऑब्जर्व किया जाता है। इस दे अंडर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक कॉन्फ्रेंस हैल्ड करनगे। डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट करनगे नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, जिसनू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है CBI द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक के अंडर इसनू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। कौन इनोग्रेट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसनू इनोग्रेट करेंगे। जिसकी थीम है, इस कॉन्फ्रेंस की थीम है विजिलेंट इंडिया प्रोस्पैरस इंडिया। विजिलेंट इंडिया प्रोस्पैरस इंडिया। इस तो इलावा CBI बारे याद रखना है। CBI का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है और RK शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला CBI के हैड ने। नेक्स्ट है अच्छा CBI, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि CBI किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? CBI किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? कमेंट बॉक्स में भी दसना। नेक्स्ट है वट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तानी फिल्म मेकर। पाकिस्तानी फिल्म मेकर का नाम दसना है जिन्हों ने जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दिते है यूनाइटेड वूमेन सिंगापुर के विच। यूनाइटेड वूमेन सिंगापुर द्वारा जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दिता गया। यूनाइटेड वूमेन सिंगापुर द्वारा की दिता गया? जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दिता गया है किन्हों? किहड़े पाकिस्तान फिल्म मेकर नूं? फर्स्ट ऑप्शन शहजाद हामिद अहमद। शहजाद हामिद अहमद इन्हों जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दिता गया बेसिकली इन्हों की मूवीज़ के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी नूं प्रमोट करदियां ने। वूमेन्स के उत्ते जो टॉलरेंस वगैरह है उन्होंने प्रमोट करदियां ने इन्हों की मूवीज़। शहजाद हामिद अहमद। उमर गुल और सना मरीन दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने। उमर गुल और सना मरीन दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस की सी। उमर गुल मेल ने, सना मीर फीमेल ने। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी, ठीक है जी, दोनों नाम याद रखने ने। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किन्ना द्वारा जितया गया? पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल वही लुइस हैमिल्टन द्वारा। लुइस हैमिल्टन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितने के नाल इन्होंने 92वां टाइटल जितया अपनी लाइफ का। इन्होंने दूसरी चीज़ याद रखनी है इन्हों बारे, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है जी, जिन्ने भी ग्रैंड प्रिक्स खेले गए ने हुण तक 2020 की अगर आप गल करते हैं तो उन्होंने विचों सब तो ज़्यादा कौन जिते ने? लुइस हैमिल्टन ने, हमेशा ही जितते हैं हर साल। प्लस अगर आप गल करते हैं बाकी की याद किस तरीके नाल रखांगे आप, जिन्ने इन्हों द्वारा नहीं जिते गए वो याद रखांगे। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रीयन सीगा, एक रशियन सीगा, एक सीगा 70th ग्रैंड प्रिक्स टाइटल और तीसरा सीगा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ये 4 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ने जिहड़े इन्हों द्वारा नहीं जिते गए। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घट अगर आप कहिए हारे से ये हल्के जे उहदे नाल। मैक्स वर्सेटेपन ने किहड़ा जित्तिया सी? 70th ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। पेरी गैसली
ਪੈਰੀ ਗੈਸਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ। ਵੋਲਟੇਰੀ ਬੋਟਾਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਸਟਰੀਅਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ। ਮਾਈਕਲ ਸਮਿਸਟਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੇਪਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰੀ ਗੈਸਲੀ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਵੋਲਟੇਰੀ ਬੋਟਾਸ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। नेक्स्ट है तन्मय श्रीवास्तव किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? तन्मय श्रीवास्तव किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? क्रिकेट तो बिलोंग करते सी। तन्मय श्रीवास्तव क्रिकेट के काफ़ी अच्छे प्लेयर। अगर आप गल करिए 2008 की तो 2008 दे विच अंडर 19 वर्ल्ड कप सीगा जिहड़ा इन्हां दी वजह तो ही जित्तिया गया सी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही सी इन्हां दी तन्मय श्रीवास्तव। विराट कोहली उस टीम के कैप्टन सीगे अंडर 19 2008 दे विच, और इन्हां दी परफॉर्मेंस प्लस विराट कोहली की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी इस इवेंट दे विच। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है, इस करके इन्हों का नाम न्यूज़ के रहा। अच्छा नाम डिस्कस कर लें। अगर स्पोर्ट्स अवार्ड की डिस्कस करिए फुटबॉल दे विच संदेश जिंगन द्वारा अर्जुन अवार्ड दिता गया। अर्जुन अवार्ड डिस्कस करते हैं आप। क्रिकेट दे विच दो नाम आप डिस्कस करते होंगे, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। बैडमिंटन SS रनिके रेड्डी प्लस चिराग शेट्टी। SS रनिके रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन दे विच। टैनिस की गल करिए दिविज शरण टैनिस दे लई, और हॉकी दे विच आकाशदीप सिंह प्लस दीपिका। हॉकी के लिए आकाशदीप सिंह और दीपिका, और क्रिकेट के लिए ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। इसे दीप्ति शर्मा है, इसे दीपिका है। ये याद रखने ने, ठीक है जी। और 2008 दे विच काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी सी इन्हां दी। तन्मय श्रीवास्तव क्रिकेट पर्सन सीगे, रिटायरमेंट लेती है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ एंडेड इट्स ऑपरेशंस इन श्रीलंका दे विच किहड़े बैंक ने अपने ऑपरेशंस नूं खत्म किया है? बेसिकली श्रीलंका दे विच किहड़े बैंक सीगा जिसने अपने ऑपरेशंस नूं खत्म किया? HDFC बैंक, सॉरी ICICI बैंक। HDFC नहीं, ICICI बैंक द्वारा अपने ऑपरेशंस नूं खत्म किया गया है। कित्थों? श्रीलंका दे विचों, ठीक है। फॉर सिमिलरली आप एक्सिस बैंक द्वारा डिस्कस किया सी। इन्हां ने किहड़ी कंट्री तो खत्म किया सी? UK दे विचों अपने बैंक खत्म किए सी। ऑपरेशंस खत्म करने का काम मतलब यानी कि उस कंट्री दे विच हुण ये अपना काम नहीं करनगे, ठीक है। ICICI बैंक ने जिहड़े श्रीलंका दे विच ने वो अपनी ब्रांचिस वगैरह बंद कर लैणगे। इस तो इलावा अगर आप गल करिए ICICI बैंक की, तो होम उत्सव ICICI बैंक द्वारा सैटेलाइट डाटा लॉन्च किया यूज़ करना शुरू किया गया सी। ICICI बैंक द्वारा WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला पहला बैंक बनिया सी ICICI बैंक। इस तो इलावा इंस्टा फ्लैक्सी लोन स्कीम शुरू की सी ICICI बैंक ने। बाकी ऑप्शन की गल करते हैं तो एग्जिम बैंक इंडिया का ऐसा बैंक है जिहड़ा कि बाकी कंट्रीज़ नूं लोन प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम नाल जानिया जाता है इसनूं। इस बैंक की जिन्ने भी ऑपरेशंस ने किस दे लई ने, ताकि बाकी कंट्रीज़ नूं लोन प्रोवाइड किया जा सके और उसके नाल इंटरस्ट कमाया जा सके। इस तो इलावा HDFC बैंक की गल करते हैं। हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज़ किया इन्हां द्वारा। शौर्य क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी शुरू की सी HDFC बैंक ने। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किए सीगे। इस तो इलावा एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दे विच 30% बाय किया गया, स्टेक बाय किया गया। इस तो इलावा इन्हां द्वारा एस क्रेडिट कार्ड रिसेंटली लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक ने। एक्सा डिजिटल चैटबोर्ड किन्ना दा? एक्सिस बैंक का है। यस बैंक द्वारा लोन ओवर सिक्योरिटीज़ और लोन इन सेकंड्स दोनों इनिशिएटिव यस बैंक दे ने, ठीक है जी। इस तरीके नाल सारे फैक्ट्स याद रखने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड बांग्लादेश इंडिया मीडिएटर्स फोरम। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन कि इंडिया और बांग्लादेश दे विच मीडिएटर फोरम एस्टैबलिश किया गया। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
पक्का पूछे जाने का चांस है। और उसके पहले चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। बंगलादेश इंडिया मीडिएटर्स फोरम बनाया गया जिस दे विच पहले चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? GYV विक्टर। फर्स्ट ऑप्शन GYV विक्टर नूं चेयरमैन अपॉइंट किया गया। GYV विक्टर नूं चेयरमैन अपॉइंट किया गया, याद रखना है। बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करिए तो उर्जित पटेल इंडिया की RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इन्हों रिसेंटली ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। उर्जित पटेल नूं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया सी। मुकंदकम शर्मा जस्टिस मुकंदकम शर्मा फॉर्मर जस्टिस ने इन्हों हुणे जिहड़े आपां स्पोर्ट्स अवॉर्ड डिस्कस किए हैं, स्पोर्ट्स अवॉर्ड डिस्कस किए हैं, उन्होंने लिए जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी उस कमेटी के चेयरपर्सन सीगे मुकंदकम शर्मा। सोमा मंडल सेल के हैड अपॉइंट किए गए थे, सेल के चेयरमैन यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे सोमा मंडल। प्रमोद बसीन नूं अपॉइंट किया गया सी चेयरमैन, काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है, पहले आप डिस्कस किया होया। चेयरमैन अपॉइंट किए सी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशनस के लिए जी काउंसिल है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च है उसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी प्रमोद बसीन। नेक्स्ट है ऑन द ओकेजन ऑफ 75th यूनाइटेड नेशंस डे who has inaugurated a philately exhibition on India and the UN a postal history. 75th यूनाइटेड नेशंस डे हुणे आपां डिस्कस करके हटे हैं। इस दिन की किया एक फ्लैटली एग्जीबिशन लॉन्च किया। फ्लैटली एग्जीबिशन पहले आपां डिस्कस किया सी फ्लैटली का मतलब की हुंदा है। 13 अक्टूबर नूं डिस्कस किया सी आपां ने कि नैशनल फ्लैटली डे ऑब्जर्व किया गया। नैशनल फ्लैटली डे यानी कि फ्लैटली का मतलब होंदा है पोस्टल स्टडी, पोस्ट ऑफिस की जी स्टैंप्स ने उन्होंने उत्ते स्टडी प्लस पोस्टल हिस्टरी के उत्ते स्टडी नूं फ्लैटली कहा जाता है। तो इंडिया और यूनाइटेड नेशंस की एक स्टैंप रिलीज़ की गई 75th यूनाइटेड नेशंस डे वाले दिन किन्ना द्वारा की गई? इसनूं वी मुरलीधरन द्वारा। वी मुरलीधरन या कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरन अफेयर्स या कह सकते हैं डिप्टी फॉरन मिनिस्टर, डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरन मिनिस्टर कौन ने? वी मुरलीधरन। एस जयशंकर फॉरन मिनिस्टर ने, नाम याद रखना है। इस तो इलावा अगर होम मिनिस्ट्री की गल करते हैं, होम मिनिस्ट्री के अमित शाह होम मिनिस्टर ने और इन्हों के 2 डिप्टी मिनिस्टर ने, डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 डिप्टी ने इन्हों के कौन कौन? एक जी कृष्णा रेड्डी और एक नित्यानंद राय। इत्थे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी कृष्णा रेड्डी और नित्यानंद राय 2 इन्हों के डिप्टी होम मिनिस्टर ने, जी कृष्णा रेड्डी और नित्यानंद राय, दोनों का नाम याद रखना है। अच्छा, जी कृष्णा रेड्डी रिसेंटली इन्हों द्वारा एक कमेटी बनाई गई सी, इन्हों की कमेटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए सी फ्रीडम फाइटर कमेटी के। ठीक है, इस तो इलावा जी कृष्णा रेड्डी द्वारा जर्मी बैन भी लॉन्च किया गया सी। नित्यानंद राय, अच्छा नित्यानंद राय भी रिसेंटली न्यूज़ के सीगे। एक तो इन्होंने कुछ शायद एक कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल किया सीगा, इनोग्रेट किया सी। बाकी कमेंट बॉक्स में भी दसना कि नित्यानंद राय रिसेंटली किस चीज़ करके न्यूज़ के सीगे। नेक्स्ट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग्स। ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग्स दे विच केड़ी कंट्री द्वारा टॉप किया गया? इंडिया का कितना रैंक है? इंडिया 131 नंबर पर है और साउथ कोरिया द्वारा टॉप किया गया। इंडिया 131वें नंबर पर है, साउथ कोरिया द्वारा टॉप किया गया। बेसिकली टोटल 138 कंट्रीज़ की यह रैंकिंग सी जिस दे विच साउथ कोरिया ने 121 MB पर सैकेंड, MBPS का मतलब है MB पर सैकेंड की स्पीड के नाल टॉप किया है। बाकी जी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ ने उन्होंने रैंक भी इंडिया नालों अच्छा रहा है। इंडिया 131 नंबर पर है। 112 इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप दे विच सीगी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडिया 112 आइसलैंड द्वारा टॉप किया गया सी। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स दे विच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स दे विच इंडिया 129वें नंबर सी
नॉर्वे द्वारा टॉप किया गया सी। इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडैक्स दे विच 142वें नंबर ते सी और नॉर्वे द्वारा ही टॉप किया गया सी। 144th इंडिया हैप्पीनैस रिपोर्ट दे विच सी, ग्लोबल हैप्पीनैस रिपोर्ट इंडिया 144th नंबर ते सी, फिनलैंड द्वारा इसनूं टॉप किया गया सी। और इस दे नाल एक ये भी याद रखना है कि मिजोरम ने इंडिया दे विचों टॉप किया सी। अगर इंडिया की हैप्पीनैस रिपोर्ट जारी की गई सी जिहड़ी उस दे विच इंडिया दे विचों किहड़ी स्टेट ने टॉप किया सी? मिजोरम ने। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन न्यू दिल्ली। बेसिकली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कित्थे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली दे विच। उस दे विच एक रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी लॉन्च की गई है। कित्थे इनॉग्रेट की गई? किन्ना ने इनॉग्रेट की है? ये ओबवियसली इसनूं आयुष मिनिस्टर द्वारा किया जाएगा। तो आयुष मिनिस्टर कौन ने? श्रीपति येसो नायक। श्रीपति येसो नायक इंडिया के आयुष मिनिस्टर ने। नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने किरण रिजिजू, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरुणाचल वैस्ट तो लोक सभा MP गजेंद्र सिंह शेखावत की गल करते हैं एक न्यूज़ एंड रिलेटेड। राव इंद्रजीत सिंह प्लैनिंग मिनिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने। और गुरुग्राम हरियाणा के विच याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हैडक्वार्टर भी है। RK सिंह आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। और RK सिंह लवे पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर आप गल करिए जल शक्ति मिनिस्टर ने जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने। इन्हां द्वारा की किया गया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नाल मिलके। इन्हां दा नाम की है? रतन लाल कटारिया, डिप्टी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। बेसिकली जी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है वो थनवर चंद गहलोत लवे है। थनवर चंद गहलोत के डिप्टी मिनिस्टर ने रतन लाल कटारिया। इन्हां दे नाल मिल के एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जियो टैगिंग के लिए। जियो टैगिंग के लिए फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्वेश्चन इसे तरीके ना पूछा जाएगा कि किन्ना द्वारा लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, जिस दे विच ऑप्शन एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे दिते जाएंगे फॉर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, क्योंकि यह मिनिस्ट्री जी कृषि के लिए योजना है, इस करके आंसर गलती नाल भी नरेंद्र सिंह तोमर नहीं लगाना। नाल ये ध्यान रखना सिंचाई, सिंचाई यानी कि पानी का यूज़ होएगा और पानी का यूज़ होएगा तो उसनूं कंट्रोल करने के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री है। जल शक्ति मिनिस्ट्री किन्ना लवे है? गजेंद्र सिंह शेखावत लवे है। इन्हां द्वारा इसनूं एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर जयंता माधव। डॉक्टर जयंता माधव इन्हां दी रिसेंटली डैथ हुई है। ये किहड़े फील्ड तो बिलोंग करते थे? ये किहड़े फील्ड तो बिलोंग करते सी? डॉक्टर जयंता माधव ये बिलोंग करते सी इकनॉमिक्स तो। इन्हां दा नाम इस करके इंपोर्टेंट बनता है, बेसिकली असम तो बिलोंग करते सी, ये असम स्टेट तो इकनॉमिक्स तो बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छे इकनॉमिस्ट सीगे और ये ADB के डायरैक्टर रह चुके हैं, इस करके इन्हां दा नाम इंपोर्टेंट बनता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके बारे काफ़ी बार डिस्कस किया है। 68 मैंबर कंट्रीज मेट्रो मनीला फिलीपींस के हैडक्वार्टर है मसद सुगु आसाकावा इसके प्रेजिडेंट ने। और ADB के डायरैक्टर के रूप में काम कर चुके हैं डॉक्टर जयंता माधव। चीफ इकनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। असम स्टेट के इकनॉमी बिलोंग करते हैं असम तो, याद रखने। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से इस करके फ्रेम किया ताकि आप नोबल प्राइजेस काफ़ी दिन हो गया आप डिस्कस नहीं किए, रिवीजन कर लें। फिजिक्स के विच अच्छा पहले मैडिसिन डिस्कस करांगे। मैडिसिन के विच नोबल प्राइज सब तो पहले आप किस तरीके से याद रखे सी? मैडिसिन के विच चार्ल्स माइकल हार्वे, चार्ल्स माइकल हार्वे मैडिसिन। फिजिक्स रॉबर्ट रेनहार्ड एंड्रिया, रॉबर्ट रेनहार्ड एंड्रिया फिजिक्स दे विच। कैमिस्ट्री की गल करते हैं जैनीफर, किस तरीके से डिस्कस किए सी? इमैनुअल जैनीफर, इमैनुअल जैनीफर कैमिस्ट्री के लिए। इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स के लिए आप डिस्कस किया सी पॉल रॉबर्ट का नाम, पॉल रॉबर्ट। और लिटरेचर के विच लुइस गलक, लुइस गलक। ठीक है जी, इस तरीके नाल सारे नोबल प्राइज याद रखने ने। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नूं पीस दे विच। नेक्स्ट है NHAI नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किहड़ी IIT दे नाल मिल के
ਹਾਈਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਈਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ IIT ਜੋਧਪੁਰ। IIT ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NHAI ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ DRDO ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਹੀ ਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਲੈਬ ਵੀ DRDO ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। IIT ਖੜਗਪੁਰ, IIT ਖੜਗਪੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? IIT ਖੜਗਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। IIT ਰੁੜਕੀ, IIT ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IIT ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਯੂਨੀਸੇਵੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਰੀ, IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। IIT ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ IIT ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਏਮਸ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ, IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੀਡ ਬੋਲ ਸਿਸਟਮ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। L&T ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋਧਪੁਰ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਂਪੇਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਸਰਵਿਸ, ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਸਰਵਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਐਂਟਰੀ, ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਐਂਟਰੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਸਰਵਿਸ ਪੋਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਸਰਵਿਸ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਰਾਈਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਗਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਗਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਲੀ ਕੁਨ ਹੀ, ਲੀ ਕੁਨ ਹੀ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੀ ਕੁਨ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਓਲ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਵੌਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੀ ਕੁਨ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੀ ਕੁਨ ਹੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 101ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ GST ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? GST ਦੇ ਲਈ। 102 ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 103 ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। 20th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਆਚਿਲਸ। ਸਿਆਚਿਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਵਲ ਰਾਵਾਕਲਮ। ਸਿਆਚਿਲਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੇਵਲ ਰਾਮ ਕਾਵਾਲਨ। कैपिटल सियाचील की विक्टोरिया है, करंसी रूपी चलती है। सूडान की गल करते हैं, सूडान तीसरी अरब कंट्री बनी है जिस यूएई और बहरेन तो बाद, यूएई और बहरेन तो बाद जिसने इजराइल के नाल एग्रीमेंट साइन करने शुरू किए गए हैं। तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया सी यूएसए प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई और इजराइल के एग्रीमेंट साइन करवाया सी जिसनूं इब्राहिम एकॉर्ड के नाम नाल जानिया जा रहा है, जिस करके डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਸਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ 2021 ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਰੇਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सूडान भी इस लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ गया। कैपिटल खार्तूम है, करंसी पाउंड चलती है। नैक्सट है इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD है जिहड़ा इंडिया का IMD, इस द्वारा साउथ एशियन फ्लड गाइडेंस सिस्टम शुरू किया गया, ठीक है, जिस दे अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट दे विच हैल्प की जाएगी डिफरेंट कंट्रीज़ की, ठीक है, बेसिकली 4 कंट्रीज़ की की जाएगी। तो इस दे विच केड़ा ऑप्शन ऐसा है जो कि इस प्लान का हिस्सा नहीं है? केड़ा ऑप्शन ऐसा है? जापान। इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिहड़ा यह इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट तो इलावा होर किहड़ी कंट्रीज़ नूं हैल्प करेगा? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, यानी कि साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम इंडिया दे विच IMD द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा फैक्ट, किहड़ी कंट्रीज़ की हैल्प करने के लिए? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, ठीक है जी। सारे फैक्ट्स याद रखने ने। नेक्स्ट है विच सिटी पुलिस मेक्स अ फिल्म ऑन वूमेन एम्पावरमेंट टाइटल अमे। अमे नाम के टाइटल के नाल एक वूमेन एम्पावरमेंट के लिए फिल्म बनाई गई है। किहड़ी सिटी पुलिस द्वारा? किहड़ी सिटी पुलिस द्वारा इस फिल्म नूं बनाया गया? हैदराबाद द्वारा। हैदराबाद पुलिस द्वारा अमे नाम के टाइटल के उत्ते फिल्म बनाई गई है वूमेन एम्पावरमेंट नूं इंक्रीज़ करने के लिए, वूमेनस नूं एम्पावर करने के लिए, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शन के रिलेटेड काफ़ी इंटरस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा सीलमपुर शास्त्री पार्क नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के विच इनोग्रेट किया गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीलमपुर शास्त्री पार्क इनोग्रेट किया न्यू दिल्ली के विच। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ही evdilli.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया। evdilli.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया। EV की फुल फॉर्म इत्थे इलैक्ट्रिक व्हीकल है। बेसिकली ਸਾਨੂੰ याद होएगा आप दिल्ली से भी डिस्कस किया कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ਹੁਣ उस पॉल्यूशन ਨੂੰ कंट्रोल करने के लिए की किया गया सी कि सब तो ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के किस करके होंदा है? नंबर ऑफ व्हीकल्स करके होंदा है। तो उन्होंने व्हीकल्स ਨੂੰ चेंज करके इलैक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया जा रहा है, ठीक है। आप डिस्कस किया फॉर एग्जाम्पल युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है। इस तो इलावा स्मोक टावर डिस्कस किया दिल्ली के लगाया जा रहा है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी शुरू की गई सी, ग्रीन एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इस तो इलावा मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट ने मदन बी लोकुर के नाम तो एक कमेटी बनाई किस दे लई, ताकि जी पंजाब, हरियाणा और यूपी के स्टबल बर्निंग है जिस करके दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होंदा है, उसनूं रोकण दे लई जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी चेयरमैनशिप मदन बी लोकुर दी, ठीक है। तो हुण इन्हां ने की किया, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स नूं प्रमोट करने के लिए इस पोर्टल नूं लॉन्च किया जिस दे अंडर सबसिडी प्रोवाइड की जाएगी। जिहड़े पर्सन अपने व्हीकल्स नूं चेंज करके इलैक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करनगे उन्होंने सबसिडी प्रोवाइड की जाएगी उन्होंने इलैक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्ते। इन्हां द्वारा ही इलैक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए की किया गया सी, रोड टैक्स भी माफ़ किया गया सी, ये भी याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर पहली ऐसी स्टेट दे विच कंट्री दे विच पहली ऐसी बनी है जिसने की किया है पब्लिक फाइनैंशियल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। पब्लिक फाइनैंशियल मैनेजमेंट सिस्टम नूं डिस्ट्रिक्ट लैवल के उत्ते शुरू करने वाली पहली ऐसी यूटी कह सकते हैं या स्टेट बनी है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कोची के रिलेटेड की सीगा कि इंडियन नेवी ने, न्यूज़ थोड़ी पुरानी है अपनी स्किप हो गई सी, इंडियन नेवी ने
की किया पहला बैच ऑपरेशनलाइज किया 3 वूमेन पायलट्स का 3 वूमेन पायलट्स का एट ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एट कोची केरला। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जोड़ा पहली 3 वूमेन पायलट्स उड़ानी है, पहला बैच लॉन्च किया गया है। नाम ने इन्हों के दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप और शिवांगी। दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप और शिवांगी। तवांग की गल करते हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश के विच है। तवांग ऐसा प्लेस है जिहड़ी कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के उत्ते है, अरुणाचल प्रदेश के विच है। इसदे विच इंडिया ने एक टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप की है। टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप की है सेचू विलेज, टी साइलेंट है, सेचू विलेज, तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। डिसाइड किया कि इत्थे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाई जाएगी। इंपोर्टेंट वाटरफॉल है इत्थे, स्टैटिक के फॉर्म के पूछा जा सकता है। चूमी ग्यात्से वाटरफॉल, चूमी ग्यात्से वाटरफॉल कित्थे है? ये कित्थे है? अरुणाचल प्रदेश के विच है। किहड़ी स्टेट के विच है या किहड़े डिस्ट्रिक्ट के विच है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। और जिसनों होली वाटरफॉल्स के नाम नाल जाना जाता है। इंडिया और तिब्बत चाइना बॉर्डर के उत्ते है। जिस प्लेस नूं की बनाया जाएगा? इंपोर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। इस तो इलावा कोई भी न्यूज़ अगर स्किप होंदी है, वैसे तो ज़्यादातर कोशिश यही है कि कोई भी न्यूज़ स्किप ना हो। अगर बाय चांस कोई न्यूज़ स्किप हो रही है तो तुसीं चाहो तो कमेंट बॉक्स के दस सकते हो, आपां उसनूं नैक्सट सैशन के डिस्कस कर लिया करांगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।